جنید اکبر کی گلگت بدری پر پاکستان تحریک انصاف برہم، وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا سپریم اپیلیٹ کورٹ گلگت بلتستان کے چیف جسٹس کو خط، انتخابی ماحول پر تشویش کا اظہار کیا، شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کے لیے متعلقہ اداروں کو ہدایات جاری کرنے کی درخواست۔ اسد قیصر نے تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کا مطالبہ کر ڈالا، کہا گلگت بلتستان میں وفاقی وزراء کی فوج موجود ہے، پنجاب پولیس مجھے جی بی جانے سے کیسے روک سکتی ہے؟ جنید اکبر کے ساتھ کیا گیا سلوک عوام کی توہین ہے۔ جنید اکبر کی گلگت بدری کے خلاف تحریک انصاف سیخ پا، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا سپریم اپیلیٹ کورٹ گلگت بلتستان کے چیف جسٹس کو خط، سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کی ہراسانی پر شدید تشویش کا اظہار، اسد قیصر کا تمام جماعتوں کو جی بی الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ دینے کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے لکھا، گلگت بلتستان میں انتخابی ماحول سے متعلق تشویشناک اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، ایک سیاسی جماعت کی نقل و حرکت پر پابندیوں کی اطلاعات ہیں، ایسی صورتحال انتخابی عمل کی شفافیت اور ساکھ کو متاثر کر سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مطالبہ کیا، عدالت آزاد، شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کے لیے متعلقہ اداروں کو ہدایات جاری کرے، سیاسی کارکنوں اور جماعتی قیادت کے خلاف غیر قانونی ہراسانی کو روکا جائے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، پنجاب پولیس مجھے گلگت بلتستان جانے سے کیسے روک سکتی ہے؟ اسلام آباد ایئرپورٹ کے لیے نکلا تو سڑک بلاک تھی، پتہ چلا میرے لیے بند کی گئی ہے۔ پنجاب پولیس کیسے وہ مجھے جی بی سے روکنے کے لیے کڑی تھی۔ بنیادی قانونی حق ہے کہ میں جا کے اپنی پارٹی کا منشور بتا سکوں۔ جو الیکشن کمیشن کا چیئرمین ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ دے۔ اسد قیصر نے پی ٹی آئی کے پی کے صدر جنید اکبر کو علاقہ بدر کرنا گلگت بلتستان کے عوام کی توہین قرار دیا۔ کہ جنگ ہوگی یا جنگ بندی میں توسیع، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکے۔ واشنگٹن اور تہران میں بدستور اعتماد کے فقدان نے ڈیل پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر صدارت سچویشن روم میں 2 گھنٹے طویل اجلاس بے نتیجہ رہا۔ حکام کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ صرف اسی معاہدے کو قبول کریں گے جو امریکی شرائط پر پورا اترے گا۔ امریکی صدر مسلسل تذبذب کا شکار ہیں، ناکہ بندی ختم کرنے کے اعلان کے باوجود آبنہ ہرمز بھی تاحال نہ کھل سکی۔ 2 گھنٹے طویل مشاورت، کئی اہم سوالات، بڑے بڑے دعوے مگر نتیجہ صفر۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ ڈیل کے لیے کسی حتمی نتیجے تک نہ پہنچ سکے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق صدر ٹرمپ کی زیر صدارت سچویشن روم میں 2 گھنٹے طویل بیٹھک بے نتیجہ رہی۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے اجلاس ختم ہونے کی تصدیق تو کی گئی مگر تفصیل نہیں بتائی گئی۔ واشنگٹن اور تہران میں اعتماد کا فقدان مزید بڑھ گیا ہے۔ جنگ ہوگی یا جنگ بندی میں توسیع، ڈونلڈ ٹرمپ تذبذب کا شکار ہیں۔ حکام کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ صرف اسی معاہدے کو قبول کریں گے جو امریکی شرائط پر پورا اترے گا۔ سچویشن روم اجلاس سے پہلے سوشل میڈیا پیغام میں صدر ٹرمپ نے آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا مگر سمندر کی اس اہم گزرگاہ میں آمد و رفت پر لگے پہرے اب بھی برقرار ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کے باوجود آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی برقرار ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سینٹ کام نے ایرانی جہازوں کو ہرمز سے گزرنے نہیں دیا، وارننگ کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ 24 گھنٹوں کے دوران 20 جہازوں نے آبنہ ہرمز کو عبور کیا۔ تمام جہاز ایرانی بحریہ سے اجازت لے کر گزرے۔ آبنہ ہرمز کا کنٹرول ایرانی فوج کے پاس ہے، مداخلت کرنے والے فوجی جہاز ہدف بن سکتے ہیں۔ ایرانی فوج کی آبنہ ہرمز میں جہازوں کو وارننگ، کہا ٹرانزٹ قواعد کی خلاف ورزی کرنے والے جہاز خطرے میں ہوں گے۔ تمام بحری جہازوں اور آئل ٹینکرز کے لیے ایرانی نیوی سے لائسنس حاصل کرنا لازم۔ تمام بحری جہاز ایران کے مقرر کردہ راستوں پر چلنے کے پابند ہیں۔ معاہدہ نہ ہوا تو دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہیں، ایران پر پہلے سے بھی زیادہ شدید حملے کیے جائیں گے۔ امریکی وزیر جنگ کی دھمکی، واضح کیا کہ ایران کے ساتھ ڈیل امریکی مفادات سامنے رکھ کر ہی کی جائے گی۔ پیٹ ہیگزت نے کہا کہ بحری ناکہ بندی برقرار ہے، آبنہ ہرمز ٹیکس فری اور آزادانہ استعمال ہونی چاہیے۔ سنگاپور میں سیکیورٹی فورم سے خطاب میں پاکستان کو مخلصانہ دوست قرار دیا، کہا وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر شاندار کام کر رہے ہیں، سچی یاری مزید پروان چڑھ رہی ہے۔ امریکی صدر تیسری بار سفارتکاری سے غداری کر رہے ہیں، سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کا رد عمل، کہا واشنگٹن ڈیل نہیں کچھ اور مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا جوہری پروگرام پر کوئی مذاکرات نہیں کر رہے، بات چیت جاری ہے، ممکنہ معاہدے کو ابھی حتمی شکل نہیں دی گئی۔
जुनेद अकबर की गिलगित बदरी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरहम। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का सुप्रीम एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस को खत। इंतखाबी माहौल पर तशवीश का इजहार किया। शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात के लिए मुतालिका इदारों को हिदायत जारी करने की दरख्वास्त। असद कैसर ने तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा कर डाला। कहा गिलगित बल्तिस्तान में वफाकी वज़रा की फ़ौज मौजूद है, पंजाब पुलिस मुझे जीबी जाने से कैसे रोक सकती है। जुनेद अकबर के साथ किया गया सलूक अवाम की तौहीन है। जुनेद अकबर की गिलगित बदरी के खिलाफ तहरीक इंसाफ सीखपा। वजीर आला सुहेल आफरीदी का सुप्रीम एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस को खत। सियासी रहनुमाओं और कारकुनों की हिरासानी पर शदीद तशवीश का इजहार। असद कैसर का तमाम जमातों को GB इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने लिखा, गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी माहौल से मुतालिक तशवीशनाक इत्तलात मौसूल हो रही हैं। एक सियासी जमात की नकलो हरकत पर पाबंदियों की इत्तलात हैं। ऐसी सूरत हाल इंतखाबी अमल की शफाफियत और साख को मुतासिर कर सकती है। वजीर आला ने मुतालबा किया, अदालत आज़ाद, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात के लिए मुतालिका इदारों को हिदायत जारी करे। सियासी कारकुनों और जमाती क़यादत के खिलाफ गैर कानूनी हिरासानी को रोका जाए। PTI रहनुमा असद कैसर ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पंजाब पुलिस मुझे गिलगित बल्तिस्तान जाने से कैसे रोक सकती है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए निकला तो सड़क ब्लॉक थी, पता चला मेरे लिए बंद की गई है। पंजाब पुलिस कैसे वो मुझे जीबी से रोकने के लिए कड़ी थी। बुनियादी कानूनी हक है कि मैं जाके अपनी पार्टी का मंशूर बता सकूं। जो इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन है उसकी रिस्पांसिबिलिटी है कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड दे। असद कैसर ने PTI KP के सदर जुनेद अकबर को इलाका बद्र करना गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तौहीन करार दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक भी गिलगित बल्तिस्तान ना जा सके। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर पहुंचे तो देखा पुलिस ने तमाम ट्रैफिक रोक रखी है। ट्रैफिक ब्लॉक की कोई माकूल वजह नहीं बताई गई। स्कर्दू जाने के लिए मुझ समय 13 मुसाफिरों की फ्लाइट मिस हुई। एयरलाइन ने भी दानिस्ता फ्लाइट को वक्त से पहले बंद कर दिया। हमारे गिर्द मुसाफिर, खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग गर्मी में रुल रहे थे। FBR एक बार फिर फेल। टैक्स रेवेन्यू का माहाना हदफ पूरा करने में नाकाम। रवां साल मई तक टैक्स वसूली का हदफ 1150 अरब रुपए था, मगर FBR 965 अरब रुपए ही जमा कर पाया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील अहमद, बताइए क्या वजह है? देखिए, FBR ने जो वजूहात बताई हैं वो तो मिडल ईस्ट वार और गैर यकीनी हालात और इसके अलावा ईद की तातीलात थी एक हफ्ता, ये वजह बताई गई है। लेकिन FBR एक बार फिर नाकाम हुआ है। FBR जो टैक्स वसूली का हदफ है वो पूरा पाया। तकरीबन 185 अरब रुपए से जायद का टैक्स शॉर्टफॉल सिर्फ मई के महीने में हुआ है। और मजमूई तौर पर देखें तो माली साल के पहले 11 माह में FBR को कोई 866 से 68 अरब रुपए तक का शॉर्टफॉल हो चुका है। और पहले 10 माह के अंदर भी तकरीबन 683 से 84 अरब रुपए का शॉर्टफॉल हुआ था। तो एक बड़ा ये शॉर्टफॉल है और इसका खुमियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है, क्योंकि टैक्स लेवी जो है पेट्रोलियम लेवी उसमें इजाफा 1468 अरब हदफ के मुकाबले में ज्यादा वसूल की गई। अगले साल भी 1727 अरब वसूली का हदफ है। तो FBR जो है उसको नाकामी का सामना है और उसकी वजह यह है कि टैक्स नेट एक्सपैंड नहीं हुआ। जो पहले से लोग टैक्स दे रहे हैं वही दे रहे हैं और जो नए टैक्स पेयर्स को लाना था टैक्स नेट के अंदर, ऐसा नहीं हो सका। तो अब अगले साल भी 15,000 अरब से जायद का टैक्स रेवेन्यू का हदफ है। इस साल जो रिवाइज किया था वो भी अचीव नहीं किया गया। तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है FBR की कारकर्दगी के ऊपर। कराची के जिना अस्पताल के वॉशरूम में बच्चे की पैदाइश। तहकीकाती कमेटी के पहले इजलास में डॉक्टर्स और अमले के बयानात कलमबंद कर लिए गए हैं। वॉशरूम में पैदा होने वाले बच्चे के वालिदैन से भी राब्ता कर लिया गया है। कमेटी हतमी रिपोर्ट पीर को महकमा सेहत को पेश करेगी। हामिदुर रहमान की रिपोर्ट। कराची के जिना अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत। वॉशरूम में बच्चे की पैदाइश की खबर समा पर नशर हुई तो महकमा सेहत की दौड़े लग गईं। अस्पताल इंतजामिया ने तहकीकात के लिए सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में गायनी वार्ड की सरबराह डॉक्टर हलीमा यास्मीन, डॉक्टर अब्दुल रब भुट्टो और डॉक्टर सद्दाम सोलेह शामिल। हफ्ते को कमेटी का 3 घंटे तवील इजलास हुआ। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स और अमले के बयानात कलमबंद किए गए। अस्पताल में नस्ब CCTV फुटेजेस का भी जायजा लिया गया। मुतासरा खातून के शौहर ने डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। टेस्टें लिखी 4 कि ये करवा के आओ। वो टेस्टें 2:30 बजे आई तो मैं खुद रिपोर्टें लेके अंदर गया। मैंने बोला, बाजी देखो आपने बोला रिपोर्टें आ जाए तो हम केस हल। मेरी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब है, कहती है सेवल ले जाओ। जब सेवल की बात की उन्होंने तो बाहर निकाल दिया, गार्ड ने बाहर निकाल दिया, भाई बाहर जाओ, इसको वॉक कराओ। तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास
बगैर किसी हतमी नतीजे के खत्म हो गया। बयानात और शवाहिद की रोशनी में हतमी रिपोर्ट पीर को महकमा सेहत को पेश की जाएगी। कैमरा टीम के साथ हामिदुर रहमान, समा, कराची। कराची से अफसोसनाक खबर दें, कोरंगी क्रॉसिंग के करीब ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक नौजवान जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए। डबल कैबिन गाड़ी ने तेजी से ओवरटेक किया, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार तीनों दोस्त गिर गए। पीछे से आने वाले वाटर टैंकर ने नौजवानों को कुचल डाला। मज़ीद जानेंगे शाहनवाज कादरी से, जो इस वक्त जिना हॉस्पिटल के बाहर मुतवफ़ी अली रज़ा के भाई के हमरा मौजूद हैं। जी बताइए। की क्रॉसिंग पे अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब एक वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मारी और उसकी नतीजे में एक शख्स अली रज़ा जिसकी शनाख्त हुई है वो जाँ बहक हो गया। तीनों दोस्त गए थे खाना खाने के लिए, करीमाबाद से वापसी आ रहे थे तो डबल डोर वाला आया है। डबल डोर वाले ने इनको पीछे से हिट करा है। हिट करने के बाद जैसे ही वो गिरे हैं तो बराबर में डंपर चल रहा था तो डंपर के नीचे इनका मुंह आया अली रज़ा का ना। तो डबल डोर वाले को पकड़ा है, नहीं पकड़ा है? वाटर टैंकर वाला तो पकड़ा गया है। जी डबल डोर वाले को तो हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे थे तो पुलिस इसको लेके जा रही थी, तो पुलिस के साथ हमने अपने एक बड़े वाले भाई को पुलिस के साथ थाने भेजा था कि इनको वहाँ तक लॉकअप करा कराएं। इस वक्त जो है लाश को उर्सा के हवाले कर दिया है। जो पुलिस ने दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। वाक़े के हवाले से मज़ीद तफ्तीश जारी है। शाहनवाज कादरी, बहुत शुक्रिया आपका। ईद तो गुजर गई मगर कराची की सड़कें न चमकी। हर तरफ आलाइशों और गंदगी के ढेर, ताफुन के बाइस आवाम का सांस लेना भी मुहाल हो चुका। मोनिस अहमद की रिपोर्ट देखिए। मेयर कराची के दावे ही रह गए। ईद तो गुजर गई मगर शहर से आलाइशें ना उठ सकी। जगह जगह गलाजत के ढेर इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गए। सोल्जर बाजार में होली फैमिली अस्पताल के एतराफ सूरत हाल इंतहाई खराब है। आलाइशें और कचरे के ढेर ताफुन फैला रहे हैं। मेयर साहब से पूछे ना वो कौन सी जगह की सफाई हो गई, जो रह गई है वो मेयर साहब के हदूद में नहीं आती। नॉर्थ नाजमाबाद में भी हालात मुख्तलिफ नहीं। गलियों, सड़कों और कचरा कुंडियों के अतराफ जानवरों की बाकियात बिखरी पड़ी हैं। सफाई तो यहाँ की आज तक हुई नहीं है। शेवर तक नहीं आया, केएमसी की गाड़ी तक नहीं आई है। यहाँ पे जो है कोई इंतज़ाम नहीं है, क्योंकि अभी पता नहीं साल तक पड़ा रहेगा, कल उठाएंगे परसों उठाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। गार्डन के मुख्तलिफ इलाकों में आलाइशों के अंबार शहरियों के लिए अजाब बन गए। गुलिस्तान जौहर में जगह जगह गलाजत के ढेर मौजूद। पहलवान गोट में ताफुन ज़दा माहौल बीमारियों के खतरे को बढ़ा रहा है। मंगोपीर रोड की मार्बल मार्केट में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। अल्लाह के वास्ते कराची में सफाई करो, रोड का कोई इंतज़ाम करो। मेयर साहब, आप जिस सीट पे बैठे हैं उसका जो फ़र्ज़ है वो पूरा करें। जो काम है वो काम करना चाहिए आपको। कराची के बेशतर इलाकों में मंजर एक सा है। गलियां हों या कचरा कुंडियां, हर तरफ गंदगी के ढेर शहरियों के लिए वबाले जान बने हुए हैं। सवाल ये है कि आखिर इंतजामिया के सफाई के दावे कब हकीकत बनेंगे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के साथ मोनिस अहमद, समा, कराची। ईद कुर्बा पर शहरी इंतजामिया कराची को ना चमका सकी। कारकर्दगी पिछले वालों से भी खराब रही। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नाअहल इदारा है जो काम नहीं करता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान की तनकीद, कहते हैं करप्शन और लूटमार का नाम पीपल्स पार्टी और MQM है। शहर कराची में जो 3 दिन ईद उल अजहा के गुजरे उस पे लोगों ने सुन्नत इब्राहिमी अदा की, लेकिन सफाई सुथराई का निज़ाम माजी के मुकाबले में इंतहाई ख़राब रहा। जमात इस्लामी के हमारे टाउन चेयरमैन, इन सब लोगों ने बहुत एफर्ट की और कोशिश की कि किसी तरह से सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर हो, लेकिन चूँकि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और फिर उसका कराची चैप्टर जो है उसके चेयरमैन तो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं। कचरे का पूरा निज़ाम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है, घर से उठाने से लेकर लैंडफिल साइट तक डालने, लेकिन वो काम भी वो नहीं करते। तो करप्शन है और लूटमार है और इसका नाम पीपल्स पार्टी और MQM है। होशियार खबरदार, नए बजट में हो रही है टैक्सों की भरमार। अब सोलर से सनत तक महंगाई करेगी जोरदार वार। जी हां जनाब, नए बजट में हाइब्रिड, इलेक्ट्रिकल गाड़ियां और सोलर पैनल महंगे होने का खदशा है, क्योंकि IMF ई व्हीकल्स और सोलर पर 18% GST लगाने पर जोर जो दे रहा है। बजट में लगाए गए नए टैक्सेस पर नजर डालें तो हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स 8% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ है, जिससे ई व्हीकल्स और हाइब्रिड गाड़ियों की कीमतों में नुमाया इजाफा होगा। इलेक्ट्रिक कारें, मोटरसाइकिल, रिक्शे, ट्रक और बसें भी मजीद टैक्स की जद में आ जाएंगी। इलेक्ट्रिक पिकअप, ट्रैक्टर और डबल कैबिन गाड़ियों पर भी टैक्स में इजाफा मुतवक्के है। सोलर पैनल्स पर भी GST 10% से बढ़ाकर 18% करने का कहा जा रहा है, जिससे मुतबादिल तवानाई के सार्फिन के अखराजात और ज्यादा बढ़ जाएंगे।